یہ دیکھیں اتنی یہ دیکھیں جی چھوٹی بچیاں بھی بیچاری عورتیں. یہ پتہ نہیں کتنے بندے ہیں لیکن 3 روٹیوں کا آٹا ہے جو بنا رہے ہیں، تو یہ بیچارے گزارا کریں گے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. 8 بندے ہیں اور روٹیاں 3 ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ادھر آگ سیک رہے ہیں جن کی چھت جو ہے نا وہ چھین لی گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا ہے بھائی جان؟ کیونکہ اس وقت یہ بہت زیادہ مشکل حالات میں ہے. یہ سامان پڑا ہے جی سارا، آپ دیکھ سکتے ہیں، 4 پہیہ وغیرہ. یہ پاکستان ہے جی، غزہ نہیں ہے. حالت جو ہے نا وہ غزہ جیسی بنی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ بس ہم پر کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ، صبح خیر. امید کرتے ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ سب بہن بھائیوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے. جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازے. آمین ثم آمین. تو ناشتہ ہمارا ریڈی ہو رہا ہے. آج ہم بنا رہے ہیں سالن ہے، آلو اور انڈا ساتھ میں ڈالنا ہے. آج ویسے مہمان بھی ہیں ہمارے گھر اور ابھی تک ہم نے ناشتہ کرنا ہے. ابھی بلا گیا تھا انڈے لینے کے لیے. 1 انڈا پڑا تھا اور میں نے کہا کہ 2 انڈے باقی لے آئیں بیٹا، یہ ادھر رکھ دیں. بس روٹی بھی بنا رہے ہیں، سالن بھی ساتھ میں ریڈی ہو رہا ہے، لسی بھی ریڈی ہو چکی ہے. آج بچے جو ہے نا انتظار کر رہے ہیں. ویسے پہلے میں انتظار کرتی تھی، آج بچے انتظار کریں گے کب کھانا تیار ہوگا ہم کھائیں گے. آج ان کو تھی چھٹی، یہ اسکول نہیں گئے، تو اسی لیے میں نے سارا کام ختم کیا. بعد میں جو ہے میں نے ناشتہ بنایا. ہاں السلام علیکم آنٹی انکل، میں آپ بیٹھے ہوں گے. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. جا رہے ہیں اس طرح بعد رہے ہیں اس طرف کا طرف پھولوں کی طرف. ہاں جی ماشاء اللہ. السلام علیکم آنٹی. آپ بھی ٹھیک ہوں؟ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں. جان بھی رہے خوش رہیں، بات رہے سے مسکراتے رہے پھولوں کی طرح. جب ہمارے چینل پہ نیا کرتے سبسکرائب، لائک، کمنٹ. بھوک لگی کھڑی ہے جی ہاں بھوک لگی ڈاڈی. جی. آج سارا کام ختم کیا. اتنے سارے کپڑے تھے، بہت زیادہ کپڑے، وہ دھلئی کیے اور انہوں نے نہایا، حبیب نے اور قبیب نے، میں نے. بس ایک زینب بچی ہوئی ہے، زینب نے. ویسے کپڑے تو اتارے ہیں لیکن یہ بیچاری نہا نہیں سکی. بس یہ اس نے نہانا ہے اور فٹافٹ جو ہے نا میں ناشتہ بنا لیتی ہوں. آپ کا بھائی بھی ابھی تک نہیں ہے، وہ بھی آ جائے گا اور پھر جو ہے نا انشاءاللہ جو باقی کا کام ہے انشاءاللہ وہ بتائیں گے آپ سب بہن بھائیوں کو. ابھی روٹی بنا لوں پھر ملتے ہیں. پہلی روٹی ہماری تیار ہو چکی ہے اور دوسری روٹی جو ہے نا میں بڑھا رہی ہوں اور انڈے بھی جا رہے ہیں. پہلے جو ہے نا وہ آلو کو ہم نے اچھی خاصی بھونیں گی اور پھر جو ہے نا انڈے جا رہے ہیں. بس روٹی بھی لگ جائے گی، سالن بھی ریڈی ہے اور کہنا میں بنا حبیب اللہ کو آج جو ہے نا بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے. آج پہلی بار اس نے اتنا ویٹ کیا، نہیں تو ناشتہ ان کا ویٹ کرتا ہے، آج انہوں نے ویٹ کیا ہے. چلیں آج پتہ چل جائے گا کہ مما کتنا جلدی ناشتہ بناتی ہے. دوسری روٹی بھی چلے گی اور پہلی روٹی کو بنانا لگانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رہا مکھن. ابھی جو ہے نا پہلی روٹی دیتے ہیں حبیب اللہ کو. حبیب اللہ اور زینب اور قبیب یہ اکٹھے بیٹھ کر کھائیں گے. بعد میں جو ہے نا بہر روٹی کو جائیں گے جو مہمان آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی، گڈ مارننگ، صبح بخیر. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ ہمارا تمام بہن بھائی دیکھنے والے خیر وفیات سے ہوں گے. الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ سب بہن بھائیوں کی دعاؤں سے الحمدللہ جی. ناشتہ وغیرہ ہم نے کر لیا اور آپ کی بھابھی نے کپڑے بھی آج صبح کے ٹائم میں شروع ہوئی تھی، ابھی تک جو ہے نا وہ بیچارے دھو رہی ہے کپڑے. میں نے سارے دھلئی کر لیے تھے لیکن اتار کے بھی میں نے اوپر ڈال دیے. اچھا حبیب اللہ خیریت ہے؟ ہاں کیا ہوا؟ اچھا چلتے ہیں ادھر بڑے گھر، وہاں پہ یہ کپڑے جو ہے نا ادھر ڈالنے پڑیں گے کیونکہ مٹی جو ہے نا ایک چکر آیا ہوا ہے، وہ اوپر چھت پہ ڈالنا ہے اور پھر جو ہے نا وہ ٹسو وغیرہ لگا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ تو کیونکہ بارشیں جو ہو رہی ہیں نا تو کافی نقصان ہو رہا ہے. پھر چھتوں کا جو امی ابو کا کمرہ ہے نا اس پہ کافی پانی جمع ہو جاتا ہے، اس لیے پھر وہ سیلنگ پہ پانی آ کے نا
वो सीलिंग को ख़राब कर रहा है। पानी नीचे आ रहा था। हाँ जी, नीचे कमरे के अंदर आ रहा था, तो इसलिए फिर हमने वो मिट्टी का एक चक्कर मंगवाया है और कोई टस वगैरह ऊपर लगाते हैं ताकि ये जो खर्चा छत वाला जो सीलिंग हो गई है ना, ये नुकसान ना हो, इसका काफ़ी सारा नुकसान हो जाएगा लाखों का। तो उधार पे वो टस वगैरह मैंने कहा है कि आप दे दें, कुछ अरसे तक आपको पैसे दे देंगे इंशाल्लाह ताला। कपड़े मैंने सुबह धुलाई की है, मेरी बात आपने पूरी नहीं सुनी। एक तो आप लोगों ने मुझे बताया नहीं था कि आज जो है ना मिट्टी छत पे डालनी है। मैंने सारे कपड़े धुलाई के, एक गंदड़ी कपड़े की थी, धुलाई करके जैसे मैंने तार के ऊपर डाली तो सब ने कहा पर्दा कर लो, मिस्त्री आया, मजदूर आए, काम करें। मैंने सोचा कि उधर होंगे भी, यूसुफ की दुकान पे होंगे। मैंने कहा कि पर्दा हो गया ना, कहा आ जाए। बस वो मैंने ठेकेदार से कहा था कि आप जो है ना कहीं से पता करें, अगर वो टस्सू मिल जाता है कुछ दिन बाद जो है ना फिर हम पैसे दे देंगे, फिर आप मुझे टस्सू लगा दें। तो उसने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ और मिट्टी भी मैं किसी को कहता हूँ, अगर जो है ना वो कल तक वो डाल देते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं। तो अभी टस्सू उठाना है, ठेकेदार ने कहा कि उन्हें मैंने कह दिया है इंशाल्लाह ताला आपको टस्सू जो है ना मिल जाएगा। तो फिर ये चक्कर जो है ना मट्टी वाला ये ऊपर डाल रहे हैं। फिर मेरे ख्याल में शापर भी मंगवाया था, पता नहीं शापर पहले डाला है या बाद में डालेंगे, ये भी कोई पता नहीं है। तो कपड़े मेरे ख्याल में इधर डाल रही है आपकी भाभी सतार भाई के घर, इनकी तार खाली है ना। अच्छा, ये धोने भी थे अभी? क्योंकि वहाँ पे आपको तो सामने वो मिस्त्री मजदूर लगे हुए थे। अभी शादी तो कर देना, पहले तो मैंने हैं शादी किसकी शादी? आंटी अच्छा, सबा की शादी है। आंटी सबा की बहन की शादी थी। हाँ देखते हैं बेटा, अल्लाह खैर करे। नहीं, हम नहीं जाने वाले। हाँ? नहीं बेटा, क्या कह रहे हो? हैं? अच्छा, नहीं जाएंगे। आपका दिल कह रहा है? चले। खुबैब तो आज तक वहाँ पे गया नहीं और कह रहा है कि अबू मैंने जाना है, चलना है शादी पे। देखते हैं जी, अल्लाह खैर करे। बाकी देखें, मरने वाले के पीछे कोई मर नहीं जाता और ज़िंदगी में कई मामलात आते हैं, काफ़ी मोड़ आते हैं ज़िंदगी में और इंसान को जो है ना हालात का सामना करना चाहिए, हालात से हारना नहीं चाहिए। जो हालात का सामना नहीं कर सकता ना वो नाकाम हो जाता है, वो बुज़दिली वाला काम है जो हालात का सामना नहीं कर सकता। तो बाकी जो भी हुआ है हमारे साथ, हम हालात का सामना कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो जाती, हम ख़ुद को कोसें, ख़ुद को जो है ना ऐसे खामखा वो टेंशन में डालें। बस अल्लाह ताला करम फरमाए सब पे। आमीन सुमा आमीन इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। जब ये मसला हुआ था तो ऐसे पता चल रहा था कि हम जो है ना बिल्कुल नहीं बचेंगे, बस हमारी ज़िंदगी जो है ना बस ख़त्म होती जा रही है। अगर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और सब बहन भाइयों ने दुआ की, हमारा साथ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सब बहन भाइयों के सामने हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह सब बहन भाइयों की दुआएं हैं और उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, हमें तसल्ली दी और हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो हौसला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात ने हौसला दिया। शुक्र है अल्लाह ताला का। जो ज़िंदगी हमारी पड़ी है तो वो तो हमने जीना है ना, जीना है। और बच्चे ऐसे हम बस खुद को घर के अंदर बंद कर दें, कहीं पर ना जाएं, किसी से कोई बातचीत ना करें, तो वो तो ज़िंदगी एक महदूद सी बन जाती है। तो हमने तो अपनी ज़िंदगी जीनी है, जो भी हो गया सो हो गया, बाकी अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह ताला। देखेंगे बेटा, इसको ख्याल अभी तक शादी का कड़ा, मैंने कहा कोई और बात कर रहा है। अल्लाह ताला इनको नेक बनाए, अल्लाह ताला इनकी कोई परेशानी ना है। वैसे सब बहन भाइयों के जिस के भी बच्चे हैं, अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। सब बस जो होना था वो हो गया, कोशिश है बाकी हर किसी का नसीब उसके साथ। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबके नसीब अच्छे बनाए। बाकी बस दुआ ही कर सकते हैं। बेशक
इधर ही डाल रही हो कपड़े? नहीं वो उधर सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं, यहाँ पे छां है, धूप नहीं है, अच्छा दरख्त का साया है, तो उधर ही डालते हैं। 2 तारे फुल हैं। ठीक है। हाँ आ जाए। बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बाकी वो तो हमें पता है कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। बच्चों को तो कुछ भी पता नहीं होता, बच्चे तो कहते हैं हमने अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छी जगह पे जाना है, उनकी सोच तो यही होती है। ऐसे बच्चे भी काफ़ी परेशान थे, बहुत ज़्यादा, परेशान है। और खुबैब भी कह रहा था कि अब वो जाएंगे उधर और हमें साथ लेके जाना। मैं आज तक वहाँ पे नहीं गया। कब चलना है, डेली का हमसे पूछते हैं कि कब चलना है, कब जाना है। देखेंगे शादी के करीब, अल्लाह खैर करे क्या बनता है, बाकी किस्मत की बात है। जा सकते हैं, जा हाँ, सकते पता हैं। नहीं कि आगे क्या होता है, और इंसान की ज़िंदगी में एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है ज़िंदगी का कि ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए, और आगे क्या हमारी किस्मत में लिखा है वो तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। हम तो कुछ भी नहीं जानते। वैसे खुबैब जब से हम उधर जाने लगे हैं ना, खुबैब अभी तक नहीं गया, उसने नहीं देखा। वैसे वो बेचारा कहीं नहीं गया, जैसे कि इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं बच्चे वगैरह। हबीबुल्ला भी गया था, वह हमारी बेटी भी गई थी, लेकिन खुबैब अभी तक नहीं गया बेचारा। उसका फिर दिल तो कर रहा है इस टाइम जो है ना मैं जाऊँ कहीं पे, जो है ना दिमाग फ्रेश करूँ। वैसे सबका जो है ना दिमाग चले अजीब देखते सा हैं, बना अल्लाह है। खैर करे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पूरे घर की कैफियत जो है ना वो अजीब सी है, बच्चों की भी हमारी भी। चले आप इसको अभी इधर रख दो, उधर चलते हैं और फिर आप कपड़े इधर डालना। ये सारे कपड़े आप सबको दिख रहे होंगे, तारें जो है ना टोटली सारी फुल हैं। सारे फुल हैं, बस मैं भी गुजारा कर रही हूँ इधर, लेकिन सबके कपड़े डले हुए हैं। चल हो जाएगा गुजारा। आज मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा है, हवा भी कुछ रुक गई है। कल तो इतनी ज़्यादा ठंड थी, अल्लाह माफ़ करे, बंदा बाहर बैठ नहीं सकता था, इतनी ज़्यादा बर्फ़ की तरह हवा चलती रही पूरा दिन। प्यारे बहन भैया, बस दुआओं में याद रखा करें, हमारे लिए ख़ुसूसन दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को चेंज करे और जो हमारे अंदर की परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला हमें हौसला दे, अल्लाह ताला हम सब पर करम फरमाए। और इधर हेड तौसा बिराज पे बस्ती थी शेखा वाली, तो वहाँ पे ना काफ़ी सारी फैमिलियाँ थी, 70 से 75 फैमिलीज़ थी, जिनके टोटल मकानात जो है ना वो गिरा दिए हैं। और इस वक्त जो उन बेचारों की हालत है ना, अल्लाह माफ़ करे, सीरियसली रोने का मकाम है। और काफ़ी हमारा दिल दुखा है, काफ़ी तकलीफ़ पहुँची है उनके हालात को देखकर। हैं कैमरा पीछे आ रहे हैं। अच्छा, हम 2 बार वहाँ से हो आए हैं और रात हम गए थे वहाँ पे, हमने 20 घरों को राशन भी दिया, क्योंकि घर तो काफ़ी सारे थे लेकिन हमारे पास जो कुछ था जितना हम अफोर्ड कर पाए तो वो हम ले गए। 20 घरों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिया। इधर ऑफ कैमरा जा रहे हैं इसीलिए मैंने कैमरा इस साइड पे फेर दिया है। अच्छा, रात हम गए थे क्योंकि घर ज़्यादा थे और रात के अंधेरे में हम इसलिए गए कि जो और 50 से 55 घर है ना वो भी बेचारे परेशान ना हों। हमने एक बुज़ुर्ग से रब्ता किया था, हमने कहा कि जो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना ज़रूरतमंद हैं, जिनके घर पे कुछ भी नहीं है, तो वो घर हमें बताएं, उनको हम जो है ना देते हैं 20 घरों को। तो हनीफ भाई और मैं रात गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनको राशन दिया। और जो उनके हालात थे, इतनी शदीद किस्म की सर्दी में, और रात तो इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चली हुई थी कल भी, और बारिशें भी हुई हैं, तो वो बेचारे बस अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। सीरियसली काफ़ी दिल दुखा है उनके हालात देखकर। खुले आसमान तले आग जलाई हुई थी, छोटे छोटे बच्चे भी वहीं पे आग पूरी रात जो है ना वो आग सेकते रहे। 5वीं रात थी रात, वो रात को यही हालत होती है उनकी, सो तो नहीं पाते बेचारे,
क्योंकि छत उनकी छीन ली गई है। तो इसमें हमारा हक बनता है कि उनके लिए हम आवाज़ उठाएं ताकि उनके मुतबादिल जो है ना उनको कुछ दिया जाए या कोई छोटी सी कॉलोनी बना के दी जाए या कैंप वगैरह, क्योंकि उनकी ज़मीनें भी नहीं हैं। उनकी ज़मीनें जो है ना वो दरिया में आ गई थी, वो बेचारे फिर उठकर इधर हेड तौसा बिराज पे गवर्नमेंट की ज़मीन थी, वहाँ पे गवर्नमेंट ने ख़ुद बिठाया था। अब उनके घर जो है ना बेचारों ने कच्चे बनाए हुए थे, कुछ पक्के बनाए हुए थे, तो वो सब के सब मिलिया मेट कर दिए हैं। तो काफ़ी दुख की बात है अल्लाह सीरियसली। ताला उनकी मदद करे। बेचारे इस टाइम पता नहीं कैसे वो ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, और इतनी सर्दी में रात को तो बर्फ़ जैसे जो है ना बर्फ़ जम जाती है, इतना सर्दी है। बिल्कुल, कल बर्फ़ जमी हुई थी सुबह के टाइम, हालांकि सूरज भी निकला हुआ था, लेकिन फिर भी हमारे हाथ जो है ना पाँव वो सुन्न हो रहे थे सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से। तो वो छोटे छोटे बच्चे बेचारे, औरतें, और बाथरूम वगैरह भी उन्होंने गिरा दी हैं, ढा दी हैं। तो उन बेचारों के लिए काफ़ी मुश्किल बनी हुई है, बहुत ज़्यादा सीरियसली। आज छठा दिन है, मैं सोच सोच के परेशान हूँ कि हमारी रियासत गवर्नमेंट क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है। हमारे मुल्क की आवाम है, हमारे लोग हैं, मुसलमान बहन भाई हैं, हम उनके लिए अगर कुछ कर नहीं सकते तो उनको नुकसान तो ना पहुंचाएं। उन बेचारों के साथ कुछ तो किया जाता ना। पूरी बस्ती की बस्ती उन्होंने ढा दी, लेकिन उनकी जो है ना सहूलत के लिए कुछ नहीं सोचा कुछ भी कि नहीं ये बेचारे सोचा। क्या करेंगे। हॉस्पिटल नौकरियां दी गई हैं, ठीक है, और जिसकी नौकरी है उसको क्वार्टर भी एक दिया गया है। वहाँ पे 2 कमरे, 1 किचन, सैन, सारा कुछ इंतज़ाम, वाशरूम, बाथरूम, सब कुछ है। जो गरीब हैं बच्चे बेचारे, उनकी बिल्कुल कोई भी नहीं सोच रहा, ना ही कोई देख रहा। ऐसा ही है, अल्लाह ताला बस अच्छा, क्वार्टर करम खड़े थे फरमाए। सरकारी, जो इधर हॉस्पिटल बना हुआ है, अभी तो हॉस्पिटल यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। जो दायरा दिन पना वाला था वहाँ आगे बनाया हुआ है ना, हाँ तो बेचारों को इधर बिठा देते। हाँ, काफ़ी सारे ऐसे जो है ना सरकारी मकानात वगैरह हैं, मौजूद हैं। कहीं पर भी उनको सर छुपाने की जगह मिल जाती तो वो बेचारे इतना ज़्यादा परेशान ना होते। हाँ, बेशक। कल उन्होंने एहतजाज भी किया, शहर कोटा 2 प्रेस क्लब भी गए थे, कॉन्फ्रेंस भी की कि कुछ तो सोचा जाए हमारे बारे में, लेकिन अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। आज छठा दिन है, 5 दिन गुजर गए हैं। बस गरीब की कोई नहीं सुनता। ये हमने देखा है, जो गरीब बेचारा है ना, वो हर बार चक्के की तरह पीस जाता है। बिल्कुल पिसा जा रहा है। गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं है। जो बेचारे इस वक्त पता नहीं किस कर्ब से वो गुज़र रहे हैं। देखें, कच्चा हो चाहे पक्का हो घर, तो कितना टाइम लगता है, कितनी मुश्किल से गरीब बंदा बनाता है, अपने बच्चों का पेट काट के, अपना पेट काट के अपना एक घर बनाता है। तो फिर आके कोई उसको मिलिया मेट कर दे तो उस बेचारे पे क्या गुजरती है। तो अल्लाह ताला बस करम फरमाए। हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, और जितना हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला हम उनका साथ देंगे और उनकी सपोर्ट भी करेंगे। अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो आज भी वहाँ पे कह रहे थे कि एहतजाज है, और वकील वकला वगैरह भी आ रहे हैं, सिविल सोसाइटी से सारे सोशल वर्कर जितने भी हैं, मीडिया वाले, वो भी आएंगे आज वहीं पे जो है ना इंशाअल्लाह ताला। हम भी कोशिश करते हैं वहाँ का चक्कर लगाएंगे, अल्लाह खैर करे। बाकी दुआओं में याद रखा करें, और बाकी नेगेटिविटी ना फैलाएं, बस ना फैलाएं। सीरियसली दिल दुखता है। देखें, जो ज़ख़म होता है ना, ज़ख़म के ऊपर अगर नमक डाल दें, वो ज़ख़म जो है ना कितनी तेज़ हो जाता है, तकलीफ़ होती है। तो इस टाइम जो है ना सब बहन भी अल्हम्दुलिल्लाह सब हमारा साथ दे रहे हैं, सब हमें हौसला भी दे रहे हैं, हमें समझा भी रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी की ना सुनो, बिल्कुल भी। जो कह रहा है हर किसी की अपनी सोच। देखें, अगर मैं किसी की गिबत करूँगी, ठीक है ना, अगर मैंने गिबत की है तो वो उनके जो गुनाह होंगे वो मेरे ऊपर आ जाएंगे, बिल्कुल, और जो मेरी नेकी होगी वो उनके अमाल नामों में लिखी चली जाएगी। देखें, हमें टेंशन नहीं होती, ठीक है। हम कहते हैं कि अब मज़ीद हमारे गिले शिकवे, हमारे खिलाफ वीडियो सब जो है ना इस तरह की बातें करें, नो टेंशन, हमें टेंशन नहीं होती। बिल्कुल ये टेंशन है कि ये गुनाह ना करें। बिल्कुल। बाकी जो हकीकत है हर इंसान की, वो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, और किसी को कोई पता नहीं है। बाकी मेहरबानी किया करें, आप जो है ना इतनी दिल दुखाने वाली बातें ना किया करें, काफ़ी दिल दुखता है। और
जिस तरह का माइंड होता है ना उस तरह की फिर बात निकलती है। बाकी हम किसी को सफाई भी नहीं दे सकते, किसी को समझा भी नहीं सकते। बाकी आपको इस तरह करना चाहिए था जैसे अब हमारे हालात हुए हैं जो हम पे गुजरी है, तो आप ख़ुद कहते कि अल्ताफ़ भाई भाभी आप कहीं पे चले जाएं, कोई आउटिंग पे चले जाएं ताकि आपका माइंड जो है ना कुछ चेंज हो जाए, आप इस सिस्टम से कुछ निकलें। क्योंकि जब एक ही जगह पे एक ही सिस्टम में एक ही परेशानी में बंदा रहता है ना तो उनका दिलो दिमाग जो है ना बिल्कुल मफलूज हो जाता है और उनकी ज़िंदगी जो है ना एक रुक सी जाती है। तो इसमें आपको ये सोचना चाहिए था, आप ख़ुद ये कहते कि अल्ताफ़ भाई आप थोड़ी आउटिंग पे चले जाएं, इधर उधर हो जाएं ताकि कुछ माइंड जो है ना वो आपका चेंज हो जाएगा, कुछ जहन फ्रेश हो जाएगा। लेकिन पता नहीं किस तरह के लोग हैं दुनिया में। जो हमारे चाहने वाले हैं उन्होंने तो हमें कब का कह रहे हैं कि आप इस घर में ना रहें, आप कहीं चले जाएं। बाकी देखें जो हो गया, ये नहीं कि हम बस हमारी ज़िंदगी एक ही जगह पे रुक गई है, हम रोक दें, बस हम एक जो है ना महदूद बन के रहें। तो इस तरह की सोच इंसान को नहीं रखनी चाहिए। आगे लाइफ पड़ी है, जब तक हमारी ज़िंदगी है हमने जीना है, हमने सारे मामलात को देखना है, सारा कुछ देखना है। अब उनसे शादी बरादरी है, वो भी हमारी शादियां खा गए हैं सब, और हमें भी लाजमी जाना है और कब से हमें वो बुला रहे हैं। वो बैठे उधर हैं लेकिन फिक्र जो है ना बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके भाई की, बच्चों की, हमारी सब की फिक्र करते हैं। बस उनकी भी यही बात है कि आप उधर हो, आपका दिमाग, आपका दिल दिमाग जो है ना अजीब होता जा रहा है। आप अगर हमारे यहाँ नहीं आते कहीं और चले जाएं, लेकिन हम कहाँ जा सकते हैं। हाँ बाकी देखिए मेरी ज़िंदगी में कहीं पर भी हम नहीं गए, कभी जाते हैं 6 महीने बाद, साल बाद अहमद भाई के यहाँ, वहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है ना 10 दिन रहे हैं वहाँ पे। ये जो शादी हुई थी, जब उन्होंने खैरात की थी ना, वो अपने मकान की अहमद भाई ने उन्होंने बुलाया था, तो फिर शादी भी करीब थी, तो इसलिए फिर क्योंकि सफ़र है काफ़ी सारा, हमारा कम अज़ कम 25 से 30 हज़ार का फ्यूल लग जाता है। तो फिर हम इधर वापस आते, फिर हम भागते, कितना हमारा ख़र्चा होता है और हम इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। इसलिए 10 दिन हम वहाँ पे रहे, 2 दिन हमारे आने जाने के, 12 दिन के बाद हम घर पे वापस आए थे। और उससे पहले 1 हफ़्ता 6 से 7 दिन हम रहे थे। कब कौन सा मौका था, जो भी, मतलब कि 2 दफ़ा हम इतने ज़्यादा दिन वहाँ पे रहे हैं, और वो भी काफ़ी अरसे के बाद। हाँ, अकरम भाई की बेटी और साल बाद या 6 महीने बाद कभी हमारा चक्कर लगता है, तो इस बात को भी उठाया हुआ है। आप उधर महीना रहते हैं, महीना, खुदा का वास्ता कब हम महीना रहे, इतना ज़्यादा दिन हम कहीं पे रहे भी नहीं। बाकी इधर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली है, हमारी जॉइंट फैमिली है, भाई हैं, भाभियाँ हैं और मेरी बहनें, सब इधर ही होते। अगर हम वहाँ पे जाते तो सब इधर ही होते, कोई हमारे बच्चे अकेले नहीं होते थे। बाकी हर बंदे की अपनी सोच होती है। बेशक मेरा भाई और मेरी भाभी और मेरे भतीजे और सासू माँ थी, मामू जान था, सब होते थे, वो अकेले नहीं होते थे। अकेला छोड़ के कौन जाता है अपने बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली हमारी बड़ी फैमिली है, सारे उधर ही होते थे और कभी भी हम अकेला छोड़कर बच्चों को नहीं गए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों को टाइम भी देते हैं और जितना हो सकता है हम उनकी जहन साजी भी करते हैं। बाकी ये नसीब की बात होती है, किस्मत में जो लिखा होता है ना वो मिल के रहता है। किस्मत का लिखा जैसे कहते हैं ना, वो नहीं टाल सकता, कोई नहीं टाल सकता। बाकी हर किसी का अपना माइंड है, कोई जिस तरह भी सोचता रहे, बातें करता रहे, किसी को हम कुछ नहीं कह सकते, बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सबको अच्छा बनाए और सबका अल्लाह भला करे। जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमें नहीं चाहते, अब हम उनको अच्छे नहीं लगते, सबका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। बाकी हमारा ये ज़र्फ नहीं है कि हम किसी को बुरा भला कहें, किसी के ख़िलाफ़ बोलें, किसी को गालियाँ दें, तो ये हमें ज़ेब भी नहीं देता। और कोई जितना भी हमें बुरा भला कहता रहे, जो भी कहता रहे, हमारी उनके लिए दुआएं हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बनाया ही ऐसा है और हमारी परवरिश ही ऐसी है। ऐसी परवरिश नहीं है कि हम बिला वजह ऐसे खामखा किसी पे बहतान लगें, किसी के बारे में गलत बातें करें, किसी को बुरा भला कहें। आज तक हमने किसी को बुरा भला नहीं कहा, लेकिन पता नहीं क्यों लोग ऐसे खामखा की बातें करते रहते हैं।
कमेंट करते रहते हैं, हर किसी की अपनी सोच है। और किसी बाकी हमारा मामला है अपने रब के साथ, और इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। गुजारनी है, इंशाल्लाह गुजारते रहेंगे। अच्छा भाई हनीफ ने गाड़ी निकाल ली है और इंतजार कर रहा है शायद आपका। तकरीबन। अच्छा कोट आपने मेरा पहना हुआ है, चलें पहने रखे, नहीं कोई मैं नहीं, देती हूँ अभी वैसे। पहने रखे हैं। अच्छा। बस प्यारे बहन भैयों, बस दुआओं की दरख्वास्त है, आप सब बहन भैयों से दुआओं में याद रखा करें। बाकी हमारी जो हकीकत है वो आपके सामने है, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, अगर हम बुरे हैं अच्छे हैं वो आपके सामने हैं। बाकी जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो हर चीज़ को समझते हैं, हर बात को समझते हैं कि कौन अच्छा है, कौन सही बातें करता है, कौन बुरी बातें करता है, सब जानते हैं, सबको पता है। और जो परवरिश होती है इंसान की वो वाज़े तौर पे नज़र आ जाती है जो समझते हैं। बाकी अल्लाह ताला सब पे अपना करम फरमाए। तो चलते हैं जी, अल्लाह खैर करे, हम फिर चक्कर लगाते हैं उधर, और वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का रखें ख्याल, और हमें रखें दो में याद। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।